the second part of this beautiful evening. It has been absolutely phenomenal so far, listening to all the nostalgic words. I'm sure it's been a journey for each one of you who is in this room today to listen to those and feel the pride of being part of ANI, which is the Aligarh Alumni Association of New England. A lot has been said today, and I'm sure that's a lot to absorb. But right now, let's just all sit down and relax for a beautiful evening of poetry, which has been, I would say, orchestrated very beautifully just for you, exclusively for this elite audience. So first of all, we are going to begin with an applause for this elite audience who have chosen to be here tonight. So let's begin with that. This, as you all know, is an evening which is combining poetry and music. And as the journey began, it was discovered that there are many, many Aligarhians who have written beautiful lyrics and have made a name for themselves in Bollywood. And that's where the idea came from, that why don't we all sit down together and enjoy the beauty of lyrics. And it was not easy because there are so many wonderful lyricists who come from Aligarh, and there's definitely a cream. So it was a difficult decision to choose who to include and who not to include. So there are, I think, about 9 poets who have been included for tonight's evening, who are being highlighted and whose work is being showcased today through the local talent. I will be co-hosting tonight. I am the founder of ATFS Learning Center, and that is how my association with ANI began almost 13 years ago when the organization began, and I have been associated with ANI ever since in various capacities. And it was actually very sweet. So many people walked up to me today and said that they have seen me in different events of ANI. Of course, in the capacity more of ATFS Learning Center, because I was conducting the math bees and the spelling bees. And of course, there's a lot of other common elements. I think I've taught a few of your kids as well at ATFS. So we've been collaborating, and Bollywood is also very close to my heart. Education is very close to my heart. So both the things are very important for tonight. Bollywood is the music that we are bringing. So as part of Foundations TV, which is my new venture, it's very close to me. And then the cause of this event, which is a scholarship, fundraising for the scholarships and for supporting people, children's education, and that has always been the dearest subject to me. So I think it made perfect sense for me to be associated with this event. So thank you so much, all the members of ANI, for including me in this beautiful journey. Thank you, Siraj ji, for including me in this journey. And with that, I would like to please invite you here. Well, thank you very much. I'll just speak from here. I've already parked here because your husband told me to. Don't move. He's already, Neeraj is our official videographer today. So I'm following his instructions. Adab, Mark Twain famously said that I have never let my schooling interfere with my education. So, and in many ways we are here because of that. I'm sure you're aware that AINA this event has a great cause, and which is education. We have a lot of education sitting here in front of me, and those who've been associated in so many other ways. So AINA will continue to accept your gracious contributions, big or small, for a great cause. तो अब ये बात जो है ये स्टार्ट तो हुई थी अलीगढ़ से बॉलीवुड तक, मगर ये बात अब हो गई है सर सैयद से बॉलीवुड तक, क्योंकि बात कहाँ से निकली थी अब कहाँ पहुँच गई है। और आपको आज हर तरफ और हर तरह से शायरी मिलेगी, और उसमें जो आप ख़ास बात देखेंगी, जो गाने
जो हम पेश करेंगे वो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर गाने हों. मोस्ट ऑफ देम आर, बट सम ऑफ देम in fact I'm sure that it will be the first time to hear them, मगर they are very good. तो इस पर मुझे जिगर का एक शेर आता है, याद आ रहा है कि अपना ही अक्स पेश नज़र देखते रहे, अपना ही अक्स पेश नज़र देखते रहे, आईना रूबरू था जिधर देखते रहे. तो वो आईना जो है, हम लोग ये इस चीज़ की अक्कासी कर रहे हैं, जो शोरा हैं उनको, उनका जो कंट्रीब्यूशन है बॉलीवुड में. तो सारी बात इस चीज़ की है. आज हम अपनी महफिल का आगाज़ सबसे पहले जनाब जानिसार अख्तर से करते हैं. ये देखिए लफ्ज़ आप का फिल्मी गानों में आम इस्तेमाल होना इन्हीं से शुरू हुआ. गानों के अल्फाज में नज़ाकत और चाशनी जो है उर्दू की, वो स्टार्ट हुई उस ज़माने से. तो जो उनके बेटे जावेद अख्तर कोशिश कर रहे हैं बेचारे, ऐसे माहौल में भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी जारी रहे. काफ़ी हद तक उनको कामयाबी हुई मगर सेटबैक्स भी हुए. तो जानिसार अख्तर के मुतालिक एक मैं अपने दोस्त मोहसिन साहब से कहूँगा कि वो हमने एक उनकी बड़ी अच्छी गज़ल सेलेक्ट की है जो आपके लिए हम पेश खिदमत है. मोहसिन, आपको मैं दावत दूंगा कि आप प्लीज़ वो आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो. जब शाख कोई हाथ लगाते ही चमन में, जब शाख कोई हाथ लगाते ही चमन में शर्माए लचक जाए तो लगता है कि तुम हो, शर्माए लचक जाए तो लगता है कि तुम हो. रास्ते के धुंधलके में किसी मोड़ पे कुछ दूर, रास्ते के धुंधलके में किसी मोड़ पे कुछ दूर एक लौ सी चमक जाए तो लगता है कि तुम हो, एक लौ सी चमक जाए तो लगता है कि तुम हो. संदल सी महकती हुई पुरकैफ हवा का, संदल सी महकती हुई पुरकैफ हवा का झोंका कोई टकराए तो लगता है कि तुम हो, झोंका कोई क्या कह रहे हैं, टकराए तो लगता है कि तुम हो. ओढ़े हुए तारों की चमकती हुई चादर, ओढ़े हुए तारों की चमकती हुई चादर, नदिया कोई बल खाए तो लगता है कि तुम हो, नदिया कोई बल खाए तो लगता है कि तुम हो. क्या कह रहे हैं? जब रात गए कोई किरण मेरे बराबर, जब रात गए कोई किरण मेरे बराबर चुपचाप से सो जाए तो लगता है कि तुम हो, आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो. तो शुरुआत करते हैं गानों की. मुबारक बेगम का गाया हुआ एक गाना, बहुत ही खूबसूरत गाना, उनके बेहतरीन गानों में शामिल किया जाता है मीना सुंदरम की आवाज़ में. तो मीना प्लीज़ आइए. आदाब, नमस्ते, गुड इवनिंग. बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम मैं बस दो लोगों का के ब्लेसिंग्स लेना चाहूँगी. अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एक मेरे फादर इन लॉ जो यहाँ पे हैं, और किरण नाथ जी, वो कहाँ हैं, आई डोंट नो वेयर शी इज. आशीर्वाद दीजिए. दर्द दिल दर्द
इसी फिल्म सुशीला का एक और गाना है, देखिए उसमें जानिसार अख्तर साहब हमारे लिए क्या पैगाम छोड़ के गए। खुद से तो बदगुमान न हो, खुद पे तो एतबार कर, सुबह ज़रूर आएगी, सुबह का इंतज़ार। यानी और ये ऐसा गाना है जो बड़ा अनोखा, जिसमें रफ़ी और तलत ने गाया है, और एक ने डेस्परेशन का है, दूसरे ने उम्मीद और होप की बात की है। यू नो, कभी आपको वक्त मिले तो दोबारा आप सुनिए, यूट्यूब, गॉड ब्लेस। तो आइए जानिसार अख्तर के ख़जाने के कुछ और मोती हम चुनते हैं। मैंने ये जाना है इस जर्नी के दौरान कि जानिसार अख्तर जब when he passed away in 1976, he was actually writing for a movie Razia Sultan. That's correct. And it's obviously a very beautiful movie. Hema Malini was the actress और हमारे all the songs are absolutely phenomenal. लेकिन जो आपने select किया है song वो बहुत ही अच्छा है। तो जो अगला गाना है वो उसी मूवी से है, और जो सिंगर हैं वो भी शायद आप ही की डिस्कवरी हैं, तो व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस हर? भाई ये तहनीत इज़ अ जूनियर एट बर्लिंगटन हाई स्कूल। ये बच्ची जो आपके सामने अब आने वाली है, आई डिस्कवर्ड हर इन 2013। हर कॉन्फिडेंस एंड मेच्योरिटी इज़ फार अहेड ऑफ हर एज। आफ्टर गुलू गुलजार इन दिसंबर लास्ट ईयर, आप हो सकता है उसमें से आप लोग मौजूद हो, हमारे एक दोस्त हैं शेखर शास्त्री जिन्होंने उसका स्क्रिप्ट लिखा था। उन्होंने कहा सिराज भाई इस लड़की को तो फॉर लाइफ पकड़ लें आप। सो यू नो, अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि आज ये बात है कि मेरे पास ये एक चेक है $50 का। ये बच्ची हाई स्कूल के, इसने ये स्कॉलरशिप फंड के लिए अपने पॉकेट मनी से ये बेचारी डोनट्स में काम करती है। उसने मुझे कहा कि सिराज अंकल ये $50 का, यू नो इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, मगर ये आप ये करें मेरा स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन। मैंने कहा तुम तो अभी कॉलेज के दूर है तुम्हारा, और ये जो फंड है ये कॉलेज के वालों की, कहने कि मुझे भी कभी, मैं भी शायद हो सकता है मेरी किस्मत हो, मैं भी अलीगढ़ चली जाऊँ। तो थैंक यू तैजियत, लवली। सो आज जो ये पेश कर रही है रज़िया सुल्तान के तवज्जुह से, ये ज़मीन चुप है, आसमां चुप है, फिर ये धड़कन सी 4 सू क्या है। तहनीत, आइए आप।
Absolutely beautiful. Wonderful. Absolutely. God bless Kanye. Wonderful. अब थोड़ा सा मुझे लगता है मूड बनने लगा है महफिल में थोड़ा मज़ा आने लगा है तो एक once we're talking about Janisar Akhtar ji, I think it would be incomplete. What do you say, Siraji? It would be incomplete if we don't bring in the association of O.P. Nayyar and Janisar Akhtar ji. There were about 85 songs, I believe, that they had written Together, together, yeah, a partnership. and yeah, and I think first one was आँखों ही आँखों में ये इशारा हो गया है. सुना है आपने वो गाना कभी? मेरे ख्याल कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं सुना वो गाना. वो नहीं गाने लगे हम लोग यहाँ पर, लेकिन कुछ एक और गाना है तो सिराजी आप. मीनाक्षी अगला गाना पेश करेंगी. मीनाक्षी आगरा से उनका ताल्लुक़ है और जो भी यहाँ आगरा के लोग बैठे हैं आप उनको ख़ास तौर से मीनाक्षी को दाद दीजिएगा. तो आगरा से और लास्ट मई में शी फीचर्ड प्रोमिनेंटली इन अ डैज़लिंग O.P. नैयर नाइट. फिर मिलोगे कभी, हो सकता है आप लोग इसमें हो उसमें. तो इस वक्त वो अपने पसंद का एक गाना पेश कर रही हैं जिसकी उन्होंने खुद फरमाइश की. तो इस गज़ल का हासिल गज़ल जो है शेर में आपको पढ़ के सुनाता हूँ. उनको जी भर के देख लेने दे, उनको जी भर के देख लेने दे, दिल की धड़कन जरा ठहर जाए. क्या बात है, वाह. मीनाक्षी प्लीज तशरीफ लाइए. गुजर जाऊं
जाए, कोई ये दिल जिए के मर जाए, बेकसी हद से जब गुजर जाए। very good मीनाक्षी, क्या कहने, बहुत। अब आप ये देखिए कि हम इस महफिल में, आज की महफिल में हम साहिर लुधियानवी को किस खूबसूरती से लाएं। अब देखिए, द ब्यूटी इज कि साहिर लुधियानवी का अलीगढ़ से कोई ताल्लुक नहीं है, सबको पता है, मगर ये हम कैसे लेके आए, तो इसकी कहानी एक है। तो जानिसार अख्तर का भी सेक्शन चल रहा है। तो जानिसार अख्तर इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल जिन्होंने अपनी पिक्चर खुद प्रोड्यूस की, यानी वो अपने महान शायर तो थे, बहू बेगम उन्होंने एक बनाई थी। अब ये इंटरेस्टिंग जो है ना इसकी, वो ये है कि एक शायर अपनी पिक्चर बना रहा है और गाने उसमें धड़ाधड़ होंगे, तो इंसान समझेगा कि भाई गाने वो खुद लिखेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मेरा दोस्त साहिर लिखेगा। यानी आप इसके ये देखिए, उस ज़माने क्या बाशऊर लोग थे कि खुद जो है उस वक्त क्लाइमैक्स पे उनका करियर, मगर उन्होंने कहा कि गाने लिखेंगे, साहिर लिखेंगे। और देखिए साहिर ने क्या जवाब दिया उसका, कि उन्होंने पूरे गाने, हर गाना हिट इस फिल्म बहू बेगम का, और 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया। दोस्त, कभी कोई दोस्त, उस वक्त साहिर वॉज द हाईएस्ट पेड पोएट, बट ये था। तो जस्ट शो द रिलेशनशिप ऑफ द पीपल जो उस ज़माने के थे। और तो ये कहानी थी। हाँ, तो अभी जो हम बुलाने लगे हैं मीशा आर्या, शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड सिंगर एंड शी इज़ एक्चुअली गोइंग टू कम एंड इट्स अ लिटिल twist to the presentation. There are 2 songs, 2 songs in one presentation. और एक गाना जो है वो लता जी की आवाज़ में गाया है और दूसरा आशा जी ने गाया है। But the common theme between the 2 songs is the actress जिसके ऊपर ये फिल्माए गए थे दोनों गाने, और वो थी मीना कुमारी। तो मीशा आर्या प्लीज। बाद में मीशा जो है वो ज़ैम्बिया से ताल्लुक़ है। जी।
मीशा के वालिदैन भी यहाँ बैठे हुए हैं, आपको पसंद आया अपनी बेटी का गाना? मैंने सेलेक्ट किया। लाजवाब। ये लोग ज़ैम्बिया से विजिट कर रहे हैं, इनके वालिदैन आए हुए हैं। We are so honored that you're here with us today. आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं एक्चुअली ऑफ कोर्स दिस वाज लाजवाब। I think और कुछ तो क्या कहें, एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल। क्या जवाब दें? लाजवाब। क्या जवाब दें? तो नेक्स्ट लिरिसिस्ट जो हैं जिनको हम ऑनर कर रहे हैं आज, उनका नाम है अली सरदार जाफरी and I would like to actually invite Fawzia Qamar on stage कि शुरुआत करें एक नज़्म से, please. अस्सलामुअलैकुम। अली सरदार जाफरी साहब इज़ अ लेजेंड फ्रॉम अलीगढ़। उनकी एक बहुत खूबसूरत नज़म आपके सामने पेश कर रही हूँ। फिर एक दिन ऐसा आएगा, आँखों के दिए बुझ जाएंगे, हाथों के कमल कुमलाएंगे, और बढ़ के ज़बां से नुत्क़ सदा की हर तितली उड़ जाएगी। एक काले समंदर की तह में कलियों की तरह से खिलती हुई, फूलों की तरह से हंसती हुई, सारी शक्लें खो जाएंगी। खून की गर्दिश, दिल की धड़कन, सब रागनियां सो जाएंगी। और नीली फिजा की मखमल पर हंसती हुई हीरे की ये कनी, ये मेरी जन्नत, मेरी ज़मीं। इसकी सुबह, इसकी शामें बेजाने हुए, बेसमझे हुए, एक मुश्त गुबारे इंसान पर शबनम की तरह रह जाएंगी। हर चीज़ भुला दी जाएगी, यादों के हंसी बुतखाने से हर चीज़ उठा दी जाएगी। फिर कोई नहीं ये पूछेगा सरदार कहाँ है महफिल में। लेकिन मैं यहाँ फिर आऊँगा, बच्चों के दहन से बोलूँगा, चिड़ियों की ज़बान से गाऊँगा। जब बीज हंसेंगे धरती में और कोंपले अपनी उंगली से, मैं पत्ती पत्ती, कली कली अपनी आंखें फिर खोलूंगा। सरसब्ज हथेली पर लेकर शबनम के कतरे तोलूंगा। मैं रंगे हिना, आहंगे गजल, अंदाज़े सुखन बन जाऊंगा। रुखसारे उरूज़े नौह की तरह हर आंचल से छिन जाऊंगा। जाड़ों की हवाएं दामन में जब फसलें खिज़ां को लाएंगी, रहरों के जवां कदमों के तले सूखे हुए पत्तों से मेरे हंसने की सदाएं आएंगी। धरती की सुनहरी सब नदियाँ, आकाश की नीली सब झीलें हंसती से मेरी भर जाएंगी। और सारा ज़माना देखेगा, हर किस्सा मेरा अफसाना है। हर आशिक है सरदार यहाँ, हर माशूका सुल्ताना है। मैं एक गुरेज़ा लम्हा हूँ अय्याम के अफसों खाने में। मैं एक तड़पता कतरा हूँ मसरूफ़ सफ़र जो रहता है। माज़ी की सुरहाई के दिल से मुस्तक़बिल के पैमाने में। मैं सोता हूँ और जागता हूँ और जाग के फिर सो जाता हूँ। सदियों का पुराना खेल हूँ मैं मर के अमर हो जाता हूँ। फौजिया कमर जो है वो दिन के वक्त डॉक्टर हैं, ये तो इस वक्त शाम को आ रही हैं और गालिबन ये कॉल पे हैं, ये आते आते ये कर देती हैं। इनके लिए ये जो हमारी किताब हमने छापी है इवेंट बुकलेट में हमारे जितने भी फनकार हैं सबका बैकग्राउंड वगैरह लिखा हुआ है। जो शोहरा कराम हैं वो तो हैं और जो हमारे फनकार जो हैं तो उनका सब लिखा हुआ है। तो वी डोंट वांट टू रीड द रेज्यूमेस अगेन। अच्छा तो हिंदुस्तान की दोस्ती पे जो लिखा है सरदार भाई ने साहब वो उनके तो यानी पूरी शाम
जाफरी साहब की उस पर गुजरी जाएगी, मगर ये था कि वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि क्या क्या सेलेक्ट करें और क्या पेश करें इसमें। मगर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा इसमें कि हमारे साथ मौजूद जाफरी साहब की बात हो रही है तो ताहिरा आपा मौजूद हैं, मेरे सामने बैठी हुई हैं, जो कि अली सदात जाफरी साहब की सिस्टर इन लॉ है। और आई एम ट्रूली प्रिविलेज्ड टू नो हर। मेरी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है और हम लोग वी ऑलवेज एंजॉय बीइंग टुगेदर व्हेनेवर वी गेट अ चांस। तो हमारे जाफरी साहब का एक बड़ा अच्छा गाना हम पेश करेंगे, जो पंकज जो हैं वो उनके ये मॉडल गाना गाएंगे। मगर पंकज से आने से पहले मैं आपको एक ये गाना जो है तलत महमूद का है, तो मुझे एक जोक याद आया, आप ज़रूर आई वांट टू शेयर इट विथ यू। तो वो है जोक सुरैया और तलत महमूद। ये 1954 की बात है। तो पिक्चर बन रही थी वारिस, जिसका वो राही मत वाले तू छेड़ एक बार, यू नो ऑल दैट। तो उसका पता चला कि जो प्रोड्यूसर साहब थे वो सुरैया के, सुरैया की उस वक्त पतंग बहुत ऊंची उड़ रही थी। उन्होंने कहा कि साहब हीरोइन साइन अप, ये स्टोरी है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो बड़ा अच्छी स्टोरी, मगर इसका हीरो कौन है? उन्होंने कहा साहब तलत महमूद इसका हीरो। उन्होंने कहा तलत महमूद ये क्या कर रहे हैं, वो तो गलत महमूद है भाई। उन्होंने कहा कि आप कैसे आप रिसर्च करें, अब सुरैया का टॉप दौड़। तो उन्होंने कहा तलत महमूद क्या चीज़? तो उन्होंने कहा देखिए वो प्रोड्यूसर साहब ने उनको सेलेक्ट किया है, यानी भाई वो तो आपने उनके रंग देखा, यानी आप ये अब सुरैया का रंग ज़रा दबा हुआ था, आप लोग सबको मालूम है। तलत महमूद गोरे चिट्टे थे, तो वो उसको डिसएडवांटेज सुरैया साहब है। तो उन्होंने कहा देखिए ये तो गलत वाली बात हो गई है, ये आप जाके बात करें, आई विल नॉट साइन। उन्होंने कहा अच्छा साहब, वो डायरेक्टर साहब थे, मैं प्रोड्यूसर के पास जाता हूँ। प्रोड्यूसर के पास जाके कहा कि भाई सुरैया की ये बात, मैंने कहा मैं आपको कल बताऊँगा। अब ये वेट कर रही हैं। अगले दिन आए तो डायरेक्टर साहब ने कहा सुरैया साहबा से कि देखिए ऐसा है कि वो प्रोड्यूसर साहब ने मुझसे ये कहा है कि वो तो चेंज नहीं करें, आप ही को पाउडर वाउडर ज़्यादा लगाएं। तो ये है, एंड दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। तो पंकज साहब आप जहाँ भी हैं तशरीफ लाएं और तलत महमूद की इज्जत अफजाई करें, उनके गोरे रंग की और उनकी आवाज़। This is to the friendship of Dr. Kokan and Dr. Ashraf. Meeting Dr. Kokan after, I don't know, more than 50 years. I just turned 50 this year, incidentally. Nice to. शाम गम की कसम आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम। शाम गम की कसम, दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम। शाम गम की कसम, चैन कैसा जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्द जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है, तो क्या चांदनी जुल्फ है और जुदाई सितम। शाम गम की कसम आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे
सनम शाम गम की कसम। अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहराओं में खो गई। अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहराओं में सो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आंखों में गम शाम गम की कसम। आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम शाम गम की कसम। तो आपको तो आई थिंक हमें थोड़ा बहुत लिटिल ग्लिम्स ऑफ स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया है, तो बहुत ही अच्छा लगा। गाना बहुत प्यारा, लिरिक्स उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। और आई थिंक वन थिंग दैट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ एनी इवेंट इज़ ये जो दिलचस्प कहानियाँ बीच में जो आती हैं। तो गाना है, म्यूज़िक है, लिरिक्स हैं, लेकिन एक पूरी जो स्टोरी बिल्ड होती है, वीव होती है, I think that really generates so much engagement and everybody totally loves it. So beautifully done, very nice, absolutely.